The second type of non-contiguous allocation is indexed allocation. So if we revise, in contiguous allocation we have the problem called internal fragmentation, external fragmentation, and we cannot grow the size of a file dynamically. In non-contiguous allocation we have studied linked allocation, and if we use linked allocation then the problem is random access. And if we try to solve random access problem by using file allocation table, that is FAT, then the size of FAT can be so huge which can itself make our RAM full. Okay, so another method could be indexed allocation, by which we can solve the problem of allocating the space efficiently. So in linked allocation, direct access was the problem or random access was the problem. Why? Because we cannot directly access a particular block, okay, which was solved by file allocation table. But file allocation table size can be huge and which can degrade the performance. So indexed allocation solves the problem by bringing all the pointers together into a block, into one location, that is the index block. So the problem can be solved by using index location. How? Let's say this is our hard disk, okay, and we have multiple blocks in our hard disk. Okay, so now let's say these are the numbers of these blocks, and let's say this is our directory. So in directory we have file name and let's say index node. So a file, let's say ABC, is having index at block 7. So this block will have all the indexes of the block used by this file. Let's say ये हमारी जो ABC फाइल है वो यूज कर रही है 4, 5, 2, 1. तो हम क्या करेंगे, इस 7th वाले ब्लॉक के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे 4, 5, 1 and 2. So these all are the indexes which are used by this file and which are stored in one index node, that is 7. Similarly, we can have another file XYZ and that index can be stored at, let's say, 11, and in this 11 block we will store the information about XYZ, let's say 0, 3, 5, because we are not storing in contiguous memory, so that's why the blocks can be in non-contiguous form. Okay, now this block may not be able to fit all the indexes, so in that case we can allocate block numbers in more than one index node. Let's see that. Okay, so first of all, what we have studied, if one block is not sufficient, what I am saying is, let's say ये जितने भी blocks हैं वो एक इंडेक्स नोड में नहीं आए, ये हमारी इंडेक्स नोड है, इसमें सारे ब्लॉक्स नहीं आए. लेट्स से हमें ब्लॉक स्टोर करने हैं 100 ब्लॉक्स और ये केवल 50 ब्लॉक को स्टोर कर सकता है, तो बाकी के 50 हम एक और ब्लॉक में स्टोर कर सकते हैं और उसका अलग से एक इंडेक्स बना सकते हैं. तो इफ वन ब्लॉक इज नॉट सफिशिएंट टू होल्ड ऑल इंडेक्सेस ऑफ ब्लॉक्स, वी कैन यूज मल्टीपल इंडेक्स node. Okay, instead of 1 we can store, let's say, 7 and 8. Okay, like this. And multiple index nodes can be linked together using linked list. So हमने क्या किया, let's say ये 7 था, ये 8 था, हमने इस 7 को 8 को आपस में जोड़ दिया. लेट्स से उसके बाद 5 यूज किया तो 7 8 के बाद 5 को यूज कर दिया. सो मल्टीपल इंडेक्स नोड्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर यूजिंग लिंक लिस्ट. ओके, और वी कैन इवन फॉर्म
one more index of the indexes, or can all indexes can be stored again in one more index. Okay, that is index block called outer index block. Okay, outer index block, and it is just like we have studied multiple paging. So let's say हमारे पास में इस ABC के लिए 7, 8 और 5 और 2 और 1 इस तरह से बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, इंडेक्स नोड्स हैं। तो हमने एक और इंडेक्स बनाया, लेट्स से 0 वाले इंडेक्स के अंदर हमने स्टोर किया, हमारे पास में कितने इंडेक्स नोड्स हैं, 7, 8, 5, 2, 1, और ये 7 वाला अलग से एक इंडेक्स नोड है, ये वाला अलग से एक इंडेक्स नोड है, 5 में अलग से एक इंडेक्स नोड है, और ऐसे ही 2 में भी और 1 में भी, एंड देन इसके अंदर डेटाज है। ठीक है, डेटा मतलब कि कौन कौन से ब्लॉक्स में हमारे पास डेटा है। तो ये क्या है, ये इनर इंडेक्स लेवल हो गया और ये आउटर इंडेक्स नोड हो गया। तो पेजिंग की तरह ही है कि एक पेज के अंदर हमने एक पेज टेबल के अंदर प्रोसेस के पेजेस और उनके फ्रेम नंबर से स्टोर करें। अगर एक पेज टेबल से ज़्यादा होगी तो आउटर पेज टेबल यूज़ की, जिसमें जो डिफरेंट पेज टेबल्स हैं उनके एंट्रीज यूज़ करी। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है। नाउ इसकी वजह से हम यूज़ करते हैं inode, एंड inode इज अवेलेबल इन यूनिक्स। ओके, सो inode का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। लेट्स से हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में पहले कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, ये एट्रीब्यूट्स क्या हैं डजेंट मैटर टू अस, एंड उसके बाद कुछ डायरेक्ट ब्लॉक्स होंगे। डायरेक्ट ब्लॉक्स इज, यहाँ पे हमारे पास डेटा है, यहाँ पे हमारे पास डेटा, ये भी डेटा, ये भी डेटा, ये भी डेटा और ये भी डेटा। सो कितने डायरेक्ट ब्लॉक्स होंगे, जनरली 13 या उससे कम होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने डेटा डायरेक्ट ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक है, उसका एड्रेस है लेट्स से 2D। ये हमारे पास एक मेमोरी स्पेस ब्लॉक है हार्ड डिस्क में और उसका एड्रेस है लेट्स से 2F, और ऐसे ही ये सब। फिर उसके बाद सिंगल इनडायरेक्ट, फिर डबल इनडायरेक्ट और लास्ट ट्रिपल इनडायरेक्ट ब्लॉक होता है। तो ये क्या होगा, सिंगल इनडायरेक्ट, ये एक एड्रेस होल्ड करेगा जिसके अंदर हमारे पास में एक ब्लॉक का एड्रेस होगा, और ये ब्लॉक के अंदर हमारे पास मल्टीपल एड्रेसेस होल्ड होंगे जिसमें डेटा होगा। तो ये है सिंगल इनडायरेक्ट। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास में कितने एड्रेसेस हैं, 256 एड्रेसेस। तो ये डेटा कितने हो गए, 256 इंटू 1 ब्लॉक साइज। ऐसे ही डबल के अंदर क्या होगा, डबल के अंदर एक ब्लॉक होगा जिसके अंदर एंट्रीज होंगी, फिर हर एक ब्लॉक के अंदर फिर से एक और ब्लॉक होगा जो पॉइंटर्स को होल्ड करेगा। ऐसे ही सबके अंदर पॉइंटर्स को होल्ड करने का ब्लॉक है, और फिर इन पॉइंटर्स के अंदर डेटा होगा। सो दीज सर्कल्स शोज द डेटा ब्लॉक्स एंड वेयर एज ऑल द अदर आर जस्ट पॉइंटर्स। ओके, सिमिलरली हियर ऑल्सो। एंड ट्रिपल में क्या होगा, ऐसे ही 1 डेटा this pointer block, each pointer block will contain again pointers, अभी 2 लेवल हुए हैं, फिर यहाँ पे अगेन पॉइंटर्स, ये भी सारे पॉइंटर्स और सब में पॉइंटर्स होंगे, और जो इनमें पॉइंटर्स हैं वो डेटा होल्ड करेंगे। ठीक है, ये पॉइंटर्स हैं और ये डेटा होल्ड कर रहे हैं। सो 3 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, एंड एट द लास्ट लेवल वी हैव डेटा। तो इसकी वजह से हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। अ वेरी लार्ज फाइल कैन बी स्टोर्ड। सो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ सी दिस क्वेश्चन, अ यूनिक्स स्टाइल inode हैज 10 डायरेक्ट पॉइंटर्स। सो हाउ मेनी डायरेक्ट पॉइंटर्स, 10। तो ये वाला हमारे पास 10 है, एंड 1 सिंगल, 1 डबल एंड 1 ट्रिपल इनडायरेक्ट पॉइंटर्स, यानी कि ये सिंगल भी है, डबल भी है और ट्रिपल भी है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकते, यही है हमारे पास। और इस क्वेश्चन में सारे गिवन है तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। डिस्क ब्लॉक साइज इज 1 किलोबाइट,
disk block address is of 32 bits and 48 bit integers are used. ठीक है, what is the maximum possible file size? तो देखो, अगर हमारे पास डायरेक्ट पॉइंटर्स 10 हैं और हर एक के अंदर डेटा स्टोर होगा डायरेक्टली, तो साइज बिकॉज ऑफ 10 डायरेक्ट pointers equal to 10 into this one pointer will consist of one block, this block, and the size of one block is 1 kilobyte. तो 10 अगर हमारे पास इस तरह से डायरेक्ट है तो 10 के साइज क्या हो गया 1 किलोबाइट ईच, दैट इज 10. फिर साइज बिकॉज ऑफ वन सिंगल इनडायरेक्ट पॉइंटर. अब देखो, ये जो सिंगल इनडायरेक्ट पॉइंटर है ये हमारे पास एक ब्लॉक को स्टोर किए हुए है जिसके अंदर हमारे पास पॉइंटर्स हैं और हर एक पॉइंटर में हमारे पास डेटा ब्लॉक है. तो कितने पॉइंटर्स होंगे ऐसे? सो नंबर ऑफ एंट्रीज इन वन ब्लॉक विल बी, देखो नंबर ऑफ एंट्रीज कैसे निकालेंगे, ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय ईच एंट्री साइज. अब एंट्री साइज देखो, डिस्क ब्लॉक्स एड्रेस इज ऑफ 32 बिट्स, तो डिस्क एड्रेस अगर 32 बिट का है तो एक एंट्री साइज क्या हुई 4 बाइट्स. देखो ब्लॉक साइज है 1 किलोबाइट, दैट इज 1024 डिवाइडेड बाय 32 बिट्स, दैट इज 4 बाइट्स. ओके, ये बिट्स है, ये हमने 1024 बाइट्स में लिखा है, so that is 2 to the power 8 एंट्रीज. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2 to the power 8 एंट्रीज होंगी और हर एक के अंदर डेटा ब्लॉक है, सो दैट मीन्स 2 to the power 8 ब्लॉक्स. तो इसकी वजह से साइज क्या हुआ 2 to the power 8 into 1 KB. अगेन साइज बिकॉज ऑफ वन डबली इनडायरेक्ट पॉइंटर. तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जैसे हमने 256 और 2 की पावर 8 ब्लॉक्स निकाले थे, ऐसे ही इसके अंदर भी 2 की पावर 8 ब्लॉक्स होंगे और हर एक एंट्री ये अलग ब्लॉक में जा रही है, अलग ब्लॉक में जा रही है, और इसमें भी 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, ऐसे ही इसमें भी 2 की पावर 8 ब्लॉक्स होंगे. सो टोटल नंबर ऑफ, हर एक के अंदर डेटा ब्लॉक है, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक्स कितने हुए, इसमें 2 की पावर 8, इसमें 2 की पावर 8, इसमें भी 2 की पावर 8, और ऐसे कितने हैं 2 की पावर 8, दैट इज 2 to the power 8 into 2 to the power 8 डेटा ब्लॉक्स. सो साइज ऑफ डबली इंडेक्स पॉइंटर इज 2 to the power 8 into 2 to the power 8 into 1 KB, that is size of one data block. And size because of one triple indirect pointer is equal to, जब हम ट्रिपल लेवल पे जाएंगे तो एक लेवल पे यहाँ पे 2 की पावर 8, फिर यहाँ पे हर एक वैल्यू से 2 की पावर 8 जनरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितने हो गए 2 to the power 8 into 2 to the power 8. फिर अगेन इसमें एक में 2 पावर 8 है तो ये वाले कितने हो गए 2 की पावर 8, फिर ऐसे ही 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, सो दैट मीन्स दिस इंटू 2 to the power 8 ब्लॉक्स, बिकॉज हर एक के अंदर एक डेटा ब्लॉक है. सो 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8, these many data blocks are available. So size will be 2 to the power 8 into 2 to the power 8 into 2 to the power 8 into 1 KB, which is the size of one block. So now if you can see what is the maximum possible size. So maximum size of a file is equal to, this is 10 KB plus size because of one single level pointer is 2 to the power 8 into 1 KB plus size because of one doubly indirect pointer is 2 to the power 8 into 2 to the power 8 into 1 KB plus size because of one triple indirect pointer which is 3 times 2 to the power 8 into 1 KB. Okay, this, so I am writing 2 to the power 8 that is 2 to the power 24 into 1 kilobyte. Okay, so this is the answer. Now I have to give answer in this form. So how to calculate this? Now if I write
2 to the power 24 and if I sum with 2 to the power 16. So this is very large number in comparison to this. अगर इसको आप स्केल डाउन करके लाना चाहो तो लेट्स से मैं इसको लिखता हूँ 2 to the power 9 और इसको लिखता हूँ 2 to the power only 2. तो ये क्या है 512 और ये क्या है 1. देखो इसमें 9 और 1 बीच में डिफरेंस है 8, यहाँ पे 24 और यहाँ 16 डिफरेंस है 8. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया कि ये नंबर बहुत लार्ज है इन कंपैरिजन टू दिस. तो ये 512 और ये क्या है ओनली 2. तो अगर मैं 512 में 2 ऐड नहीं भी करूं तो चल जाएगा बिकॉज इट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू 512. तो यहाँ देखिए ये है 2 to the power 16, ये है 2 to the power 10 और ये तो केवल 10 की भी है. तो इन कंपैरिजन टू 2 to the power 24 we can neglect all these size. So अब देखो ये 2 to the power 24 और ये 1 KB. तो 2 to the power 24 into 2 to the power 10 बाइट्स. आंसर बाइट्स में है, KB में नहीं है. तो इट इज 2 to the power 34 बाइट्स. So आंसर इज C. Okay, let's see another question. This question is in GATE 2012. A file system with 300 gigabytes disk uses a file descriptor with 8 direct block addresses. Okay, one more thing, in the last question this 48-bit integers are used is also given. This information is not useful in this question, it is just given to confuse you. Similarly, this 300 GB disk size is given in this question. This is also irrelevant from the question and you will see that we will not use this information. तो कुछ इन्फॉर्मेशन अगर फालतू दी हुई है तो उसको इग्नोर भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन ही यूज होगी. तो हमारे पास डायरेक्ट ब्लॉक कितने हैं 8, 1 इनडायरेक्ट ब्लॉक एंड 1 डबल इनडायरेक्ट ब्लॉक. सो दिस इज सिंगल इनडायरेक्ट ब्लॉक एंड दिस इज डबली इनडायरेक्ट ब्लॉक. ट्रिपल इनडायरेक्ट ब्लॉक इस बार गिवन नहीं है, जरूरी नहीं है कि ट्रिपल होगा ही होगा. ठीक है, तो द साइज ऑफ ईच ब्लॉक डिस्क ब्लॉक इज 128 बाइट्स. तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, डिस्क ब्लॉक साइज इज इक्वल टू 128 बाइट्स एंड द साइज ऑफ ईच डिस्क ब्लॉक एड्रेस इज 8 बाइट्स. यानी कि एंट्री size is equal to 8 bytes. The maximum possible file size in this file system is, आप कैलकुलेट कर सकते हो, पहले कैलकुलेट करो और फिर उसके बाद आंसर चेक करो. तो हमने देखा मैक्सिमम साइज ऑफ अ फाइल इज इक्वल टू, देखो पहले डायरेक्ट ब्लॉक, फिर फर्स्ट लेवल दैट इज सिंगल इनडायरेक्ट प्लस फिर 1 डबली इनडायरेक्ट. हमें ये कैलकुलेट करना है. ट्रिपल इनडायरेक्ट इसमें गिवन नहीं है. तो डायरेक्ट ब्लॉक के लिए 8 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक का साइज क्या है 128 बाइट. तो 8 इंटू 128. 1 इनडायरेक्ट में कितने एंट्रीज होंगी उतने ब्लॉक्स होंगे. तो नंबर ऑफ एंट्रीज इज इक्वल टू block size divided by each entry, that is 2 to the power 7 divided by 2 to the power 3 which is equivalent to 2 to the power 4 equal to 16 entries. Okay, so 16 into size of a block plus in doubly index 16 into 16 because in one block we have 16 and at second level each entry will have 16 blocks. So 16 into 16 into 1 block size. Now here the value is not so large that we can ignore this. So we will sum all things. And this answer is in bytes because this is 8 byte, this is 128 byte. So now what you can do is you can convert this into 2 to the power. It will be easy to calculate. So this is 2 to the power 3 into 2 to the power 7 plus 2 to the power 4 into 2 to the power 7 plus 2 to the power 4 into 2 power 4 into 2 to the power 7 bytes. So if we solve it more, so it is 2 to the power 10 plus 2 to the power 11 plus 2 to the power 15 bytes. We can take
2 to the power 10 as common, that is 1 plus 2 plus 2 to the power 5, which is 32. So this is 32 plus 3 is 35 and 2 power 10 bytes is KB, so 35 KB. So the maximum file size is 35 KB in this particular system. So answer is 35 KB. Okay, here we have finished this allocation techniques, and in next video we shall start with what are the different things involved in hard disk. So plates, we will discuss about plates, cylinders, sectors, tracks, and after that we will do some questions, and in last we will see there are few algorithms, and those algorithms are really easy. For the algorithms are used to access the tracks on the hard disk. Okay, and then this operating system subject will be finished. Thank you.